Sit very comfortably with your back straight. Your eyes are closed. Start looking inside. Watch your mind, watch your thoughts. Simply watch, not to indulge in any thought, in any activity of mind. Simply watch. As a neutral energy, you simply look. You have third eye. You yourself is third eye. You have full potential to keep this watching process continue. Simply watch. If there is darkness inside, you keep looking on it. If there are thoughts, bundle of thoughts coming up again and again, some are positive and mostly negative. All thoughts which are coming and going inside, you simply watch them. This watching process will help you to be free from the mind one day. Being a non-doer, you never suggest anything to your mind. You simply watch. Expand your awareness. Expand your watching process. Do not try to be thoughtless. You will never be successful in that direction. You simply watch. Watch all over inside, full of thoughts. Thoughts which have borrowed from outside. You have borrowed them. You will see in the process of meditation your own thoughts which you have imported from outside, borrowed from others, related to others, not to you. They are the cause of your tension, stress, depression, migraine, panic, anxiety. You should dissolve them by meditating more and more. They all will disappear when you will be in meditation, deep meditation. Mind is always negative. It creates negativity. You will understand its nature. You should not have any identification with the mind. You are not a mind. You keep your own true nature. You are a seer, witness. You are a non-doer entity. You are not a doer.
You are always enlightened, just like sun. In your light, in your power, in your energy, mind works. Mind is always extrovert. It has come from outside and it lives outside. You should not control it. Never try to control it. Never try to control it. Never suppress it. You simply watch it. Watch its play. Watch its magic. And enjoy its shifting nature. Sometimes you will laugh at it. How much useless thoughts it creates. Do not allow it to play negativity. You keep yourself at some distance and watch mind's play. Being a non-doer, you never suggest anything to your mind. You simply watch. In watching process, there should be no pressure at all. You are not to do anything. Simply watch. You have watchful nature. You can look inside too, as you are looking outside very naturally. You can look inside too, very causally, very gently, very simply. Keep looking on. Keep watching. Become free from the mind more and more and enjoy your own bliss. You are happy, healthy, and wealthy in spirit by nature, but you have forgotten your true nature. While being with the mind, you have forgotten your own true nature. We have to remember it again. This is meditation. Remember yourself, your true nature. Discover your true nature. Explore your true nature. You live with it. You become very happy, healthy, and wealthy on this earth. This is the right way to lead this invaluable life on this Mother Earth.
निरंकार आमीन एमन। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल, बन के मेरा हम कदम तो साथ चल, गुरुवर साथ चल। ओ कल्याणकारी मित्र, मेरे कल्याणकारी मित्र, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल, तो साथ चल, तो साथ चल, तो साथ चल, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल। कन्याकुमारी की रॉक पे खड़ा हुआ डिस्करेजिंग स्पिरिट एनकरेजमेंट की मूर्ति बन गया। क्या पुकार हार्दिक होकर की उठी, हार्दिक पुकार क्या गजब की उठी। आकाश गूंज उठा, जगमगा उठा, साथी होलिया उतर गया, पुनः प्रकट हो गया अपने पुत्र में, अपने सच्चे सच्चे वफादार का स्वरूप, वफादारी का जामा पहन करके दीवाने में क्षमा पुनः जगमगा गई। आकाशवत हो गए जो अपने प्यासे रिंदों में उतर करके उनको भी आकाशवत कर गई। ये हार्दिक पुकार प्यास सदा सदा के लिए आबाद कर गई, उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड फिगर बनाई गई।
ये है एकमात्र प्रेम जो भीतर की घटना है, बाहर की नहीं, जो हार्दिक घटना है, हृदय की घटना है। प्रेम की परम घटना भीतर घटित होती है, बाहर नहीं। परे मैं, जहां मैं मेरा मेरी नहीं रहता, जहां तू तेरा तेरी रहता है, एक तो रहता है, मैं ना ही। प्रेम में कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। जिसमें शिकवा है, शिकायत है, कंप्लेंट है, समझिए वो प्रेम नहीं। जी मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, मीरा महारानी कहती है। जी मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम ना करिए कोई। आपने बहुत गलत इंटरप्रेट किया इसको, बहुत गलत व्याख्या दी है इसको आपने। वो तो गजब की बात कह रही है कि प्रेम में दुख नहीं है। गर होता तो मैं नगर ढिंढोरा पीटती, लोगों को कभी ना कहती कि तुम प्रभु से प्रेम करो। गर मैं ऐसा जानती, समझिए जरा, गर मैं ऐसा जानती, मैंने ऐसा जाना नहीं। प्रेम में जो सुख मुझे भाया वो मुझे महलों में नहीं मिला। क्या गजब की शांति शक्ति का प्रतीक होकर के महारानी उठी। सैकड़ों महारानियां, हजारों महारानियां हुई हैं राजस्थान में, राजपुताना में। कौन जानता है किसी को? एक महारानी पद्मनी और एक महारानी मीरा को कौन भूल सकता है? कौन जानता है राजाओं महाराजाओं महारानियों को जो यूं ही गुजर गए पीठ देकर के परमात्मा को, मन के हाथ लग गए। किंतु जो मन के बियॉन्ड हुए, जो मन से हट करके अपने हार्दिक भाव में उतरे, जिन्होंने उस परम पितु के प्रति अपनी सिंसारिटी, ऑनेस्टी, अपनी वफादारी का जामा पहन करके खड़े हुए, उन्हें दुनिया चारों युगों में नहीं भूल सकती। उनसे दिशा लेकर के अपने जीवन को सुखी बनाती है ये दुनिया। जी मैं ऐसा जानती, अगर प्रेम में दुख होता मैं जानती तो सर्वप्रथम मैं ही प्रेम को छोड़ देती। जी मैं ऐसा जानती। अपनी इंटरप्रिटेशन ठीक कर लीजिएगा, व्याख्या ठीक कर लीजिएगा। गलत दिशा देने वालों ने बहुत गलत व्याख्याएं की हैं, भीतर के अंधों ने। मीरा महारानी जैसी शिकवा शिकायत, उसके प्रेम में शिकवा शिकायत, उसके प्यार मोहब्बत में शिकवा शिकायत, कंप्लेंट्स कभी सपने में भी नहीं उतर सकती। जी मैं ऐसा जानती कि प्रेम किए दुख होए, अगर प्रेम में, प्रभु प्रेम में दुख ही दुख है, जी मैं ऐसा जानती तो मैं दुनिया को रोक देती, प्रेम मत करना। किंतु मैं तो नहीं, कदाचित भी नहीं दुख पाया मैंने अपने प्रेम में। मैंने तो सब दुखों को, सब कांटों को अपने प्रेम में समाहित कर लिया, सुखपूर्ण बना लिया। सारे प्रतिकूल हालात को मैंने अनुकूल बना लिया। मैंने रसायन पिरो लिया प्रेम का। मैंने विराट से प्रेम किया जहां डुअलिटी वर्क नहीं कर सकती। मैंने माइंड के पार अपने अस्तित्व से प्रेम किया, अपनी ट्रू नेचर से प्रेम किया। मैंने अपने मालिक, जन्मदाता, जीवन प्रदाता के साथ प्रेम किया। मैंने अपने मालिक प्रभु के साथ प्रेम किया, जो सबका पति है, मैंने उससे प्रेम किया। जे मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, गर मैं ऐसा जानती तो मैं नगर ढिंढोरा पीटती कि तुम प्रभु प्रेम में मत पड़ना। प्रभु प्रेम में, इस प्रेम के रोग में जो पड़ा है वो बाहर से बहुत दुखी दिखाई देता है, किंतु वो दुखी कदाचित नहीं है। वो दुखपूर्ण स्थिति में कभी भी नहीं है। हो सकता है कष्ट हो, बाहर की दुनिया ने कष्ट दिए हैं, चारों ओर के लोगों ने, अपनों ने, गैरों ने कष्ट ही कष्ट दिए हैं प्रभु के दीवानों प्यासों को,
किंतु कोई परवाह नहीं। कष्ट करुणाजनक हो गए हैं, कष्ट सहनीय हो गए हैं, कष्ट स्वीकारी हो गए हैं। मैसोचिस्ट नहीं हुआ मैं मैसोचिस्ट नहीं हुई, मैं मैसोच की अंधेरी नगरी में नहीं हूं। मैंने उतरे हुए कांटों की तरह कष्टों को भी प्रभु का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लिया है। मैं इतनी विराट हो गई, मैं इतना विराट हो गया। हर हालात उस मालिक का भेजा हुआ मेहमान समझ करके, गेस्ट समझ करके मैंने स्वीकार कर लिया। हर हालात मैंने स्वीकार कर लिया। उसकी रजा, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा अगर यही है तो मुझे स्वीकार है। गुरु रविदास के द्वार पर पहुंच करके मीरा महारानी ने गजब ढाया। क्या गजब का अंदाज पिरोती है, क्या गजब की पुकार उठाती, क्या गजब का धन्यवाद करती है। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, 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 आज रंग लाई है। वारी वाह मीरा महारानी, प्रभु जी तेरी कृपा। राजपुताना की महारानी, मेवाड़ की महारानी, मेवाड़ की महारानी के आगे अकबर बादशाह झुकता है। ग्रेटर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर झुकता है। उसके दर्शनों के लिए प्रातः काल आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उसका दर्शन करने आते हैं, उससे मिलने आते हैं। उसकी प्यास दर्द दीवानगी की ओरा में, वाइब्रेशन में शांति प्राप्त करने आते हैं। मीरा महारानी के मेवाड़ पर टेढ़ी आंख कभी भी अकबर ना रख सका। अकबर का साम्राज्य ग्रेटर इंडिया, जहां मेवाड़ वेटिकन की तरह छोटी स्टेट है, उसको छेड़ना मानो मक्खियों के, मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ना है। जहां एक एक कुर्बानी का परवाना दीवाना रहता है। मीरा महारानी, मेवाड़ की महारानी मीरा बाई हो गई, मीरा बाई हो गई। गुरु रविदास के द्वार पर पहुंच गई, मीरा महारानी हुई मीरा बाई। चारों युगों में आबाद हुई। रूपांतरण की क्रांति आई, ट्रांसफॉर्मेशन घटित हुई। क्रांति रूपांतरण की गुरु के द्वार पर घटित हुई। गुरु कृपा की महान पात्र होकर के मीरा बाई सदा सदा के लिए विराट में समाहित हो गई। वापस नहीं लौटी राजपुताना में। महाराजा उदय सिंह ने बहुत बार लोगों को भेजा, महारानी वापस आइए, तेरे बिना मेवाड़ सब सूख गया, तेरे बिना मेवाड़ में कोई रौनक ना रही, तेरे बिना चाहूं और पशु पक्षी जीव जंतु सब निराश है। इंसान तो है ही। हम सब कन्फेस करते हैं अपनी तमाम प्रकार की गलतियों को, कन्फेशन में हैं हम पश्चाताप में हैं। हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। जब राजा उदय सिंह गद्दी पर बैठा, पति भी गया, देवर भी गया, राजा उदय सिंह आया, तो उसने महारानी रियल एम्प्रेस को अपने मेवाड़ में बुलाने की पूरी कोशिश किया, नहीं आई। विराट में समाहित हो गई, विराट में एक हो गई गुरु कृपा से। क्या गजब का संगीत छेड़ती है महारानी मीरा, जो मीरा बाई हो गई। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा।
चाहा था जिसे वो मुझे मिल गया, मैंने चाहा था जिसे वो मुझे मिल गया। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। लिखा था हथेलियों पे नाम जिसका, लिखा था हथेलियों पे नाम जिसका, किया था निगाहों से सलाम जिसका, किया था निगाहों से सलाम जिसका, दिल में है मेरे वो दिल में है मेरे वो प्यारा हमनशी, किया इंतजार हर वक्त जिसका, दिल में है मेरे वो प्यारा हमनशी, किया इंतजार हर वक्त जिसका। मांगो मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा, मांगो मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। मांगो मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा, मांगो मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा।